Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start in class 11th history. Topic the early empire. Dear student, as you know that in my previous class I was discussed the early empire. No doubt to show that this paragraph is very long. In this topic, the various content which is discussed by me. Again, I remind you that what we studied. We discussed that we can divide it Roman history in two phases, early and later. By the 3rd century, as a sort of the historical watershed between them, and other word, the whole period down to main part of the 3rd century can be called the early empire, and the period after that late empire. 3rd century के पहले के काल को हम एक पार्ट में और 3rd सेंचुरी के बाद के काल को हम दूसरे पार्ट में रख सकते हैं. हमने आपको ये भी बताया था, इट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाई मी दैट कि जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी का काल था वो शांति का काल था. द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी दैट वाज वेरी पीसफुल टाइम. बट after 3rd century, what happened? After 3rd century, we had seen that the Roman history, a lot of conflicts, differences, and the various king mounted on throne. It was discussed by me. I was also discussed about the republic. What is the meaning of republic? The republic was the name for regime in which the reality of power lay with the Senate, a body dominated by the small group of wealthy families who formed the nobility in practice. The republic represented the government of the nobility exercised through the body called Senate. The republic lasted from 509 BC to 27 BC, when it was overthrown by the Octavian, the adopted son and her the Julius Caesar, who later changed the name of Augustus. The membership of the Senate was for life and wealth, and office holding counted the more than birth. My dear, रिपब्लिक क्या था? मैंने आपसे कहा कि रिपब्लिक का अर्थ था गणतंत्र, लेकिन इस गणतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं थी. इस गणतंत्र में रोमन एम्पायर के उन वेल्दियर लोगों की भागीदारी थी जो लोग वेल्दियर फैमिली से आते थे, जो लोग नोबल फैमिली से आते थे, जो लोग लैंडलॉर्ड थे. मतलब एक छोटा सा ग्रुप पूरे रोम के ऊपर शासन चलाता था, शासन करता था. राजा को भी सीनेट के आदेशों को मानना पड़ता था. रिपब्लिक का शासनकाल 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक अबाध गति से, निर्बाध गति से चलता रहा. सीनेट के मेंबर का बोलबाला था. लेकिन 27 बीसी में टाइबेरियस का पुत्र, टाइबेरियस का सन, जूलियस सीजर का सन, जो अगस्टस के नाम से मशहूर हुआ, उसने गद्दी प्राप्त की और उसने सीनेट के सदस्यों की शक्तियों को छीन करके अत्यंत ही न्यूनतम सीमा पर लाया और फिर एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट स्थापित की. कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से रोमन एम्पायर में कुल 3 पार्ट महत्वपूर्ण थे. एक पहला पार्ट था, वो था रोम की सत्ता का प्रिंसिप. प्रिंसिप ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वो प्रिंसिपेट कहलाया. और फिर प्रिंसिपेट के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ द एम्पायर, सीनेट, एंड थर्ड पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट वाज द आर्मी. तो इस तरह से रोम के पॉलिटिकल सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण लोग थे: प्रिंसिप्स, सीनेट and army. Princeps, it means emperor. Senate, it means wealthier group. And army, they were no doubt to say that
It was powerful institutions. It was controlled by king, and they were loyal to king. The paragraph, the regime established by Augustus, the first emperor in 27 BC, was called the Princeps, although Augustus was the sole ruler and the only real source to authority. The, the fictions was kept alive that he was actually only the leading citizens, Princeps in Latin, not the absolute ruler. Even जो अगस्टस थे वो एक्चुअल रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, लेकिन उन्होंने सीनेट को सम्मान देने के लिए प्रिंसेप्स की टाइटल अडॉप्ट की। उन्होंने अपने को राजा नहीं कहा। बहरहाल इन चीज़ों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। अगर आप देखें तो कहता है कि नेक्स्ट द एम्परर, एज फार एज द मैटर ऑफ द आर्मी, कहता है नेक्स्ट द एम्परर एंड द सीनेट द अदर की इंस्टीट्यूशंस ऑफ द imperial rule was the army. Unlike the army of its revival in the Persian Empire, which was conscripted army, the Roman had a paid professional army, but soldiers had to put in minimum 25 years old. They have to provide their services in Roman army at least 25 years. Roman army, it was very vast, 6 lakh मेंबर वर इन फोर्थ सेंचुरी में उनके पास 6 लाख उनकी सेना में थे। कहता है कि रोमन आर्मी जो है वो पर्शियन आर्मी की तुलना में एकदम अलग थी। क्यों? क्योंकि पर्शियन आर्मी में कंस्क्रिप्टेड लोग थे, पकड़ के भर्ती किए गए लोग थे, लेकिन रोमन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी से बनी हुई थी। लोगों को डेली वेजेस उनको पे किया जाता था, उनको मंथली सैलरी दी जाती थी, प्रोफेशनल थे टोटली। लेकिन आपने इरानियन आर्मी को देखा, पर्शियन आर्मी को, वो प्रोफेशनल नहीं थे, दे वर कंस्क्रिप्टेड, उन्हें पकड़ के ला के भर्ती किया गया था। ये बेसिक डिफरेंसेस थे उसमें। जब सेना को प्रॉपर सैलरी मिलती थी तो वो विद्रोह नहीं करते थे, लेकिन जब जैसे ही सेना को सैलरी प्रॉपर नहीं मिले तो वो अपने जनरल के अगेंस्ट और कभी कभी वो अपने शासक के अगेंस्ट भी विद्रोह कर दिया करते थे। कहता है टुक द फॉर्म ऑफ द म्यूटनीज इफ द सोल्जर्स फेल्ड लेट डाउन बाय देयर जनरल्स और इवन द एम्परर अगेन, और द पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे देयर वर portrayed by historian with senatorial sympathies. The Senate hated and feared the army because it was the source of often the unpredictable violence, especially in the tense condition of the 3rd century, when government was forced to tax more heavily to pay for its माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कहते 3rd सेंचुरी में सेना के द्वारा जब राजा अधिक टैक्स वसूल करने लगा तो ये 3rd सेंचुरी के समय सबसे बड़ा टेंस का काल माना जाता है। जो सीनेटरियल बोर्ड के लोग थे, जो सीनेट के मेंबर थे, वो लोग डरते थे सेना से। क्यों? क्योंकि राजा सेना की मदद से ही अपने समस्त कार्य संपादित करता था। अगर किसी सीनेट के मेंबर को डराना हो, किसी सीनेट के मेंबर को दंडित करना हो, टैक्स वसूलना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना हो, आर्मी उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती थी। टू सम अप द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स एम्परर्स डिपेंडेड ऑन देयर कंट्रोल ऑफ द आर्मी, and when the armies were divided the result usually was civil war. कहता है कि यदि सम्राट अपनी सेना को कंट्रोल करने में सफल हो जाता था तो वो एक सफल सम्राट के रूप में अपने को सिद्ध कर लेता था, लेकिन यदि वो सफल ना हो, सम्राट की सफलता इसी बात पे डिपेंड करती थी कि सम्राट अपनी सेना को
नियंत्रित कर पाता है या नहीं, कंट्रोल कर लेता है या नहीं। अगर सम्राट अपनी सेना को कंट्रोल करने में सफल होता था तो वो सफल सम्राट हो जाता था, और यदि वो सम्राट अपनी सेना को कंट्रोल करने में सफल नहीं होता था, सक्सेस नहीं होता था, तो उसका रिजल्ट सिविल वार होता था। कहता है एक्सेप्ट, कहता है यहाँ से देखिए, एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वार। अगर सेना कई ग्रुप में बढ़ जाती थी तो देश में सिविल वार हो जाता था, गृह युद्ध हो जाता था। Except for one notorious year 69 C, when four emperors mounted the throne in quick succession. 69 C 69 AD का टाइम पीरियड रोमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय था जब एक साल के अंदर अंदर 2 सम्राट गद्दी पे बैठे। The first 2 centuries were on the whole free from civil war, and in this sense relatively stable succession to throne was based as far as possible on family descent, either natural or adaptive, and even the army was strongly wedded to this principle. It is very clear that there is no meaning that who is throned or who is mounted on throne. Meaning is that if the king is mounted on throne, if the king is available in empire, either he was adopted or natural son of the king, loyalty of army to the king, ठीक है। कहता है कि राजा के प्रति सेना का पूरी तरह से स्वामी भक्ति थी, लॉयल्टी होती थी। वो लोग इस बात को मानते थे, वो लोग इस बात पे बल देते थे, सेना इस बात के प्रति हमेशा तत्पर रहती थी कि वो किसी भी कंडीशन में राजा को सम्मान देगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि 69 सी में जैसा मैंने आपको बताया कि एक साल में 2 शासक गद्दी पे आए। ये तुरंत गद्दी पे बैठना एक तरीके से क्या था, राज्य के लिए अच्छा नहीं था। कहता व्हेन 4 एम्परर्स माउंटेड, कहता 69 सी, व्हेन 4 एम्परर्स माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन। 69 सी में 4 सम्राट गद्दी पे बैठे जल्दी जल्दी। द फर्स्ट 2 centuries were on the whole free from civil war, and in this sense the relatively stable succession to the throne was based as far as possible on family descendant, either natural or adoptive, and even the army was strongly wedded to this principle. For example, Tiberius 14-37, the second in this long life of Roman emperors, was not the natural son of Augustus, the ruler who founded the principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. कहता है कि यदि आप समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो एक निश्चित समय में कहता है कि अगर आप 69 सी को देखें तो वो 69 सी का समय ऐसा था जब रोमन साम्राज्य पे कुल 4 सम्राट गद्दी पे बैठे। सम्राट कौन गद्दी पे बैठता था इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब था कि सम्राट गद्दी पे है तो सेना उसी को सपोर्ट करती थी, और सम्राट की सफलता भी इसी में थी कि वो किस हद तक अपनी सेना को कंट्रोल कर लेता है। यदि वो अपनी सेना को कंट्रोल करने में सफल होता था तो वो सफल सम्राट माना जाता था, और यदि वो अपनी सेना को उस कंट्रोल करने में सफल नहीं होता था तो उसकी सफलता बहुत कुछ उसी के हाथ में निर्भर होती थी। जैसा कि आपका बुक कहता है कि 69 सी को छोड़कर जब एक के बाद कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पे बैठे तो पहली 2 शताब्दियों में कोई सिविल वार नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एडाप्टिव हो। सेना इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी
आर्मी, एज आई टोल्ड यू, कि आर्मी इसके लिए कृत संकल्प थी, रिजॉल्व थी, descendant either natural or adaptive, and even the army was strongly wedded to this principle. Army was strongly wedded to this principle. सेना इस बात को क्या करती थी, बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करती थी, मानती थी। उदाहरण दे रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक अच्छा उदाहरण है कि टाइबेरियस जो था, जो 14 to 37 एडी में गद्दी पे बैठा, या सी में गद्दी बैठा, जो रोम सम्राट की लंबी लाइन में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद लिया था। वो एडाप्टेड सन था, लेकिन सेना ने उसको सपोर्ट किया। अब प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से टाइबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना बड़ा था कि उसका विस्तार करना अब जरूरी नहीं था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन, इस शांति की शुरुआत दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय का पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने 113 to 17 एडी में किया, सी में किया, जिसके द्वारा उसने यूफ्रेट्स के पार के क्षेत्रों पे बेवजह निरर्थक कब्जा किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इस इलाकों को बाद में छोड़ दिया। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के समय प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक जो डिपेंडेंट स्टेट थे, डिपेंडेंट स्टेट रोम के प्रांतीय राज्यों में आते थे, वो मेनली जो डिपेंडेंट स्टेट थे वो रोम के पार्ट तो नहीं थे, लेकिन वो रोम के ऊपर डिपेंड थे, रोम को वो टैक्स पे करते थे। जो भी इस छोटे स्टेट रोम के आसपास स्थित थे, निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन 2nd सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य यूफ्रेट्स के पश्चिम में और रोम राज्य के क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम के द्वारा क्या किया गया, हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य प्रॉस्परस राज्य थे, ये प्रोविंसेस स्टेट प्रॉस्परस स्टेट थे। उदाहरण के लिए हेराड का नाम लेता है, कहता है हेराड 5.4 मिलियन डिनेरियस, जो 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर था, हेराड से उसको इनकम होती थी रोमन एम्पायर को। रोमन एम्पायर सिर्फ एक स्टेट हेराड से 1,25,000 किलो सोना प्राप्त करता था, जो 5.4 मिलियन डिनेरियस के बराबर थी, चांदी के बराबर थी। और एक सिक्का जो चांदी का था वो 4.5 ग्राम का होता था, जो प्योर सिल्वर का था। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी क्लियर दैट एक्सटर्नल warfare was also much less common in the first 2 centuries. The empire inherited by the Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt to be unnecessary. In fact, the Augustus is remembered for the peace it ushered in the after decades of the internal strife and centuries of military conquest. The only major campaign of the expansion in the early empire was Trajan. Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates in the year 113 to 70 C, abandoned by his successors. मैंने जैसा आपको कहा कि त्राजान ने 113 से 117 के बीच जो यूफ्रेट्स के पार के क्षेत्रों को जीता, वो उसका एक निरर्थक प्रयास था। बाद में उसके सक्सेसर्स ने इन क्षेत्रों को छोड़ दिया। कहता है मच मोर कैरेक्टरिस्टिक वाज द
gradually extension of Roman direct rule. This was accomplished by absorbing the whole series of dependent kingdom into Roman provincial territory. The Near East was full of such kingdom, but by the early second centuries, those which lay waste up by Rome, incidentally, some of this kingdom were the exceedingly wealthy. For example, Herod, a kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to over 125,000 kg of gold. The denarius was the Roman silver coins containing about 4.5 grams of pure silver. In fact, except for Italy, which was not considered much more characteristic was the gradually extension of the Roman district rule. This was accomplished by absorbing the whole series of dependent kingdom into Roman provincial territories. The Near East was full such kingdom, but by the early second century, those which lay west of the Euphrates toward the Roman territories had disappeared, swallowed up by Rome. I hope you are getting what I am saying. For example, Herod's kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal over to 125 denarius. Okay, in fact, except for the Italy, which was not considered a province in these centuries, all the territories of the empire was organized into the provinces and subject to taxation. At its peak in the second century, the Roman Empire stretched from the Scotland to border of Armenia and from the Sahara of the Euphrates and the sometimes beyond. Given that there was no government in the modern sense to help them to run things, you may well ask how was it possible for emperor to cope with the control and administrations to such a vast diverse territories with a population of some 60 million in the mid second century. Answer lays in the urbanization of this empire. वास्तव में इटली जैसे शताब्दी इटली जिस इटली जो देश है जिसे उस सेंचुरी में प्रोविंसेस नहीं माना जाता था, स्टेट नहीं मानते थे। समाज के सभी क्षेत्रों में समाज के जितने भी प्रांत थे वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटे हुए थे और उनसे टैक्स वसूला जाता था। सेकेंड सेंचुरी में जब रोम अपने एकदम चरमोत्कर्ष के काल पे था, चरमोत्कर्ष पे था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सेनाओं कहता है रोम साम्राज्य रोमन एम्पायर स्कॉटलैंड से आर्मेनियाई बॉर्डर तक और सहारा से यूफ्रेट्स, कभी कभी यूफ्रेट्स के आगे तक के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इतना बड़ी साम्राज्य सीमा। ये सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। फिर भी ये प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ होगा, जबकि आबादी दूसरी शताब्दी सेकेंड सेंचुरी के मिड में लगभग कितने पहुंच गई थी, 6 करोड़ के आसपास थी। ओके, कहता है कि इतनी बड़ी थी, 60 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी थी मिड सेकेंड सेंचुरी में। इस प्रश्न का आंसर कैसे ढूंढेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। लाइज इन द अर्बनाइजेशन द एम्पायर। इसका आंसर है साम्राज्य में नगरीकरण का विकास। यह प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के हम नगरीकरण को देख सकते हैं, शहरीकरण से खोजा जा सकता है। कैसे? कहता है द ग्रेट अर्बन सेंचुरीज
the great urban centers that lined the shores of the Mediterranean. ओके, कहता है कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक were the biggest among them, were the true bedrock of the imperial system. It was though the cities the government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. What this means is that the local upper classes actively collaborate with the Roman state in the administrating their own territories and resisting the taxes from them. In fact, one of the most interesting aspects of Roman political history is the dramatically shift in power between Italy and the provinces throughout the second and third century. It was the provincial upper classes who supplied most of the cadre that government, provincial and commanders, the armies. They came from a new elite of the administrator and the military commanders who became much more powerful than the senatorial class because they had the backing of the emperors. As this new group emerged, the emperor, the Gallienus, consolidate their rise to power, the extending senators from the military commands. We are told that the Gallienus forbade the senators from the serving in the army of the having access to in the order to prevent control the empire from the falling in their hands. कहता सीधे सीधे कि संपूर्ण साम्राज्य जो था, रोमन एम्पायर जो थी, वो दूर तक अनेक छोटे छोटे शहरों के रूप में स्थापित थी। ये छोटे छोटे शहर, ये छोटे छोटे साम्राज्य, ये छोटे छोटे नगर जो उस समय के थे, उसी के माध्यम से राजा शासन करता था। साम्राज्य की कंट्रोलिंग का एक सेंटर के रूप में ये शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मेडिटेरियन सी के सीशोर पे स्थित बड़े शहरों के में कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक सबसे बड़े शहर थे। इसके बारे में हमने चर्चा की। जो इंपीरियल सिस्टम का मूल आधार था, इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्थापित करती थी और प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में वो सफल हो जाती थी। जो शहरों से लगे हुए गांव थे, उनसे टैक्स वसूलने के लिए शहरों में जो व्यापारियों की संस्था होती होगी या कोई आर्मी का पर्सन होता होगा जो शासन स्थापित करके गांव से वो टैक्स वसूल आसानी से कर लेता था और साम्राज्य इसमें बहुत हद तक सफल हो जाती थी। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो जाती थी, जिनसे साम्राज्य को, एम्पायर को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी, टैक्स मिल जाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्र के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। मतलब ये शहर जो थे, वो शहर साम्राज्य को टैक्स वसूलने, उन पे कंट्रोल करने, उन चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखने, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, में मदद करते थे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़, एक बड़ा प्रश्न कि जो इन शहरों के माध्यम से एम्पायर इन पे नियंत्रण रखता था, तो यहाँ पे जो लोग कार्य करते थे, जो प्रशासन होता था, ये प्रशासन में कौन भागीदारी, किसकी भागीदारी थी? तो कहता इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू है। सेकेंड और थर्ड सेंचुरी के दौरान अधिकतर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सैनिक अफसर थे, वो एलिट क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इस प्रकार उनका एक नया एलिट क्लास बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे इस नए समूह का उभार
हुआ, नए समूह उभर के सामने आए। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जा सके। संक्षेप में, शार्ट में कंक्लूजन के रूप में कहें तो पहली शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी की शुरुआत और थर्ड सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा शासन एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकाधिक लोग प्रांतों के लिए जाने लगे। ये एडमिनिस्ट्रेशंस में अब सीनेट के लोग नहीं थे, वेल्दियर लोग नहीं थे, बल्कि लोकल लोग थे जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। थर्ड सेंचुरी तक आते आते ये बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले कौन थे? एलिट क्लास के लोग। पहले कौन थे? वो वर्ग जो उन क्षेत्रों में आता था। आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम टेलिंग दैट द एलिट क्लास फैमिली दे वर द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. Gallienus was the first emperor who believed that if they controlled the city, they controlled the treasury, it may be possible that they became the rebellion against empire. They stand against the center. So that's why it decided that, अब जो आर्मी कमांडर बनेंगे, जो सेना के लोग होंगे, उनकी जगह स्थानीय लोगों को उसने अधिक महत्व दिया। साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्थानीय लोगों को उसने शहरों के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी, और अब सीनेट पर कम से कम थर्ड सेंचुरी तक जो इटली के लोगों का सिर्फ और सिर्फ इटली मूल के लोगों का ही जो प्रभुत्व बना था, अब वो धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर अधिक संख्या में हो गए, उनकी संख्या बढ़ने लगी। इन प्रवृत्तियों से ये पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चुका था। धीरे धीरे थर्ड सेंचुरी तक आते आते इटली का प्रभाव रोमन एम्पायर में कम होता चला गया। मेडिटेरियन सी के कंपेरिजन जो शहर थे उस भागों में, स्पेन के दक्षिणी हिस्सों में, अफ्रीका के पूर्वी भागों में नए एलिट क्लास का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर ऐसे शहरी केंद्र थे जिसके मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था। वो अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम उसमें शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हस्तक्षेप कर सकता था, किंतु इसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पे जो शाही अनुकंपा के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था, जिससे राजा शहरों पे कंट्रोल करता था। राजा अगर किसी शहर में म्यूटनी होती थी या शहर में अपराइजिंग होती थी या रिवोल्ट होते थे तो शहर का दर्जा घटाकर उसको गांव बना देता था और गांव को एरिया बढ़ाकर उसको शहर बना देता था। इन शहरों में मजिस्ट्रेट और सिटी काउंसिल काम करती थी। इसके बारे में मैंने आपसे कहा। अब इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लास्ट में देखें अपने बुक में तो आपको एक क्या दिखेगा, एक यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको यहाँ पे एक स्नानागार दिखेगा। द पब्लिक बाथ्स वर स्ट्रिकिंग फीचर्स of the Roman urban life. When the one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of the clergy there. Water was scared, what were the sacred elements, and to use it, the public bathing may have seemed a discretion to them. And urban population also enjoyed the much higher level the entertainment. For example, one calendar tells us the spectacular show filled the less than 176 day of the year. कहता है कि अगर आप जो एक रिचुअल बात को देखें तो कहता है कि सार्वजनिक स्नानागृह रोम के शहरी जीवन का एक
खास विशेषता थी। रोम में लोग स्नान करने के लिए एक साथ सामूहिक रूप से जाते थे। जब एक ईरान का शासक ये सिस्टम अपने यहाँ लॉन्च करने का प्रयास किया तो उसे ईरान के क्लेरजी वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। पुरोहित वर्ग बड़े नाराज हुए क्योंकि पुरोहितों का मानना था कि ईरान में पानी को, जल को, वाटर को एक बहुत ही सेक्रेड माना जाने वाली चीज़ थी। कहने का सेंस इतना ही है कि जब सार्वजनिक स्नान गृह जो थे, रोम के शहर के जीवन की जो एक मुख्य विशेषता थी, एक ईरानी शासक ने जब इस ऐसे ही जो सामूहिक स्नानगृह ईरान में शुरू करने का प्रयास किया, ईरान में उसने ग्रेट बात बनवाई, तो पुरोहित वर्ग के क्रोध का उसको सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था कि पानी क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा। इसलिए शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, ऐसा पुरोहितों का मानना था। उदाहरण एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 डे था जो महत्वपूर्ण था। न कोई वहाँ मनोरंजक कार्यक्रम का प्रदर्शन, कहता है 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम जरूर होते थे। ये उनकी अपनी एक विशेषता थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और इस चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।